জেম, GEM নামটা হয়তো বা আপনাদের কাছে একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে, তাই না? আসলে জেম হচ্ছে ইংরেজি কিছু শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। G for girls, E for empowerment and M for mission। ইংরেজিতে এটিকে বলা হয় গার্লস এম্পাওয়ারমেন্ট মিশন। বাংলা ভাষায় এটিকে বলা হয় বালিকা বিকাশ প্রকল্প বা যোজনা। হিন্দিতে বালিকা সশক্তিকরণ অভিযান বা প্রকল্প। এটা লক্ষণীয় যে এত ছাত্রছাত্রী থাকতে শুধুমাত্র এই 12 থেকে 14 বছরের বালিকাদেরকেই বেছে নেওয়া হলো কেন? মূলত এই সময়টিকে বলা হয় শিশুদের বয়ঃসন্ধিকাল। এই বয়ঃসন্ধিকালে যদি শিশুদের মনের মতো উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে উপযুক্ত রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তাহলে তারা তাদের নিজেদের স্বপ্নের উড়ান নিজেরাই আগামী দিনে তৈরি করে নিতে পারবে বলেই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং ঝাড়খণ্ড জেলার প্রায় 24টি স্কুল থেকে 120টি বালিকাকে নিয়ে এই প্রশিক্ষণ পর্ব চলছে। এনটিপিসি কর্তৃপক্ষের মালদা জেলায় অবস্থিত টাউনশিপ PTS-এর ট্রেনিং সেন্টারে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই আমরা জেনে নেব তারা কী ধরনের শিক্ষা শিখলেন এখানে থেকে, বাড়িতে থাকাকালীন এবং এখানে থাকাকালীন তাদের কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে, এই প্রশিক্ষণ তাদেরকে কতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবছর সারা ভারতবর্ষে এনটিপিসি কর্পোরেটের মাধ্যমে প্রায় 6000 বালিকা এই গার্লস এম্পাওয়ারমেন্ট মিশন বা জেমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। বালিকা বিকাশ বা বালিকা সশক্তিকরণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ নিয়ে এসেছেন, যা অত্যন্ত সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। এখান থেকে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই বালিকা সশক্তিকরণ অভিযানের মাধ্যমে দেশের নারী শক্তি আগামী দিনে মহীরুহ বা মহীয়ান হয়ে উঠবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, বা আগামী দিনে এদের মহীয়ান হয়ে উঠতে সহযোগিতা করবে, এ ব্যাপারে 100% নিশ্চিতভাবে বলা যেতেই পারে। यहाँ के क्या शिक्षा मिला है, क्या क्या मिला है? हम लोगों को योगा, मार्शल आर्ट, कंप्यूटर और बहुत सारा एक्टिविटी हुआ है, जैसे कि फायर और हेल्थ सिस्टम। इसमें हम लोगों को फायर में जो कैसे आग बुझाना जाता है वो सब सिखाया जाता है। यहाँ पर आकर हम बहुत कुछ सीखे हैं। आप लोग का डेली मतलब हर रोज़ जो काम में लगेगा ये सब शिक्षा हुआ है? हाँ। और जब अब घर में थे और यहाँ आया, इसका बीच में डिफरेंस क्या है? इसका बीच में तो हम लोग घर में तो योगा नहीं करते, यहाँ पर योगा करके हम लोगों का शरीर बहुत अच्छा हो गया, स्वास्थ्य तो बहुत डिफरेंस हुआ है। और यहाँ पर मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग बाहर जब जाते हैं लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना देते, तो मार्शल आर्ट जब हम लोग सीखे तब लोग सुरक्षित हैं हम लोग अभी। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम लोग का लिखाई पढ़ाई करना चाहिए? हाँ, क्या नाम है? हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि EVS, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, लाइफ स्किल और फिर कंप्यूटर। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम असीफा चौधरी है, मैंने LNSM हाई स्कूल से आई हूँ। यहाँ के क्या शिक्षा मिला है, क्या क्या मिला है? हम लोगों को योगा, मार्शल आर्ट, कंप्यूटर और बहुत सारा एक्टिविटी हुआ है, जैसे कि फायर और हेल्थ सिस्टम। इसमें हम लोगों को फायर में जो कैसे आग बुझाना जाता है वो सब सिखाया जाता है। यहाँ पर आकर हम बहुत कुछ सीखे हैं। आप लोग का डेली मतलब हर रोज़ जो काम में लगेगा ये सब शिक्षा हुआ है? हाँ। और जब अब घर में थे और यहाँ आया, इसका बीच में डिफरेंस क्या है? इसका बीच में तो हम लोग घर में तो योगा नहीं करते, यहाँ पर योगा करके हम लोगों का शरीर बहुत अच्छा हो गया, स्वास्थ्य तो बहुत डिफरेंस हुआ है। और यहाँ पर मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग बाहर जब जाते हैं लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना देते, तो मार्शल आर्ट जब हम लोग सीखे तब लोग सुरक्षित हैं हम लोग अभी।
यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम लोग का लिखाई पढ़ाई करना चाहिए। हाँ, क्या लगा? हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि EVS, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, लाइफ स्किल और फिर कंप्यूटर। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम असीफा चौधरी है, मैंने LNSM हाई स्कूल से आई हूँ। এই যে জিম প্রোগ্রাম হচ্ছে, এই প্রোগ্রামে এসে তোমরা কি কি শিখেছো? এই প্রোগ্রামে এসে আমরা অনেক কিছুই শিখেছি। এই প্রোগ্রামে এসে আমাদের কীভাবে সময়ে কী কী কাজ করতে হয় এবং সকালবেলা আমরা ঘুম থেকে উঠে টাইকন্ডো, যোগা এবং এবং তারপরে পড়াশোনা করে বিকেলে আমাদের খেলাধুলা, নাচ গান হয়। তারপরে ইনডোর আউটডোর গেম হয় আর অনেক কিছুই এখানে শেখায়। তোমাদের এখানে এসে কেমন লাগছে? এখানে এসে আমাদেরকে খুবই ভালো লাগছে। এখানকার ম্যাম, ম্যাডাম, দিদি, স্যার, এখানকার সবাই ভালো। তোমরা কী মনে করছো যে তোমরা স্কুল লাইফে একটা তোমাদের জীবন ছিল, স্কুল লাইফ থেকে এখানে একসঙ্গে অনেক তোমাদের মতনই সহপাঠী যারা আছে, তোমাদের মতন বয়সী যারা আছে, কি তফাৎ তোমরা বুঝতে পারলে? এখানে এসে আমি অনেক কিছু তফাৎ দেখতে পেয়েছি। আমার এখানে এসে অনেক ভালো লাগছে আর আমি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি আর এখানকার সবার সঙ্গে আমাকে আলাপ আলোচনা করে অনেক ভালো লাগছে এবং আমি বাড়িতে গিয়েও এগুলো আমার এই রুটিন পালন করতে পারি এবং আমার বাড়ির সবাইকে বলতে চাই। কি নাম তোমার? আমার নাম শ্রেয়া হালদার, আমি নয়নসুখ LNSM হাই স্কুল থেকে এসেছি। हायर सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ। मैं एक कविता बोलने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। मोहनलाल चतुर्वेदी। जहाँ नहीं मैं सुरवाला के गानों में गूंथा जाऊँ, जहाँ नहीं प्रेमी माला में दिल प्यारी को ललचाऊँ, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चरु भाग्य पर इठलाऊँ, जहाँ नहीं सम्राटों के सब पर ही हरी डाला जाऊँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चलाने जिस पर जाए वीर अने। থেকে এসেছি আমি একটি আবৃত্তি বলতে চাই। আবৃত্তির নাম নইলে কিন্তু আলি, লিখেছেন অপূর্ব দত্ত। সকালবেলায় ঘুম ভেঙেছে, মা বললেন শোনো, বাসি মুখে 100 থেকে 1 অবধি গণ, 9টা নাগাদ খেলতে যাব। বাবা বললেন ও ভাই, আবুধাবির রাজধানী কি, মস্কো না দুবাই? স্কুলে গেছি ইংরেজি স্যার হেঁকে বললেন হে ইউ, খেলগাইস্কোপ লিখতে গেলে খেল লাগে না খিউ? খেলতে গেছি ছোট না আবার প্রথম বলে আউট। আম্পায়ারটা বলল এটা বেনিফিট অফ ডাউট। সন্ধেবেলা সে কি লড়াই, গদ্যে এবং পদ্যে কি কপাল, লোডশেডিংও হয় না মাঝে মধ্যে। এতজনের সঙ্গে আমি একা লড়তে পারি? ও দাদু ভাই বিচার করো, নইলে কিন্তু আরি। कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी। घर की चहल पहल है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी, कभी धूप गुनगुनी सुहानी, कभी चंदा सी शीतल है बेटी। शिक्षा को संसार दो फिर बेटो तो सबल है बेटी, सहारा दो अगर विश्वास का तो पावन गंगा जल है बेटी। प्रकृति के सद्गुण सोचो तो प्रकृति से निश्चल है बेटी, क्यों डरते हो इसे इस दुनिया में रहने से, अरे आने वाला कल है बेटी। मैं पालनहारी हूँ पर गुहार भी करती हूँ, मैं सज्जन जानती हूँ तो विनाश भी करती हूँ। संसार रास्ती हूँ इसलिए जननी हूँ, मैं सिद्ध हूँ सीप हूँ जननी भी हूँ। मैं सृष्टि हूँ, मैं संपूर्ण हूँ इसीलिए मुझे गर्व है मैं औरत हूँ। पहले पापा बेटी बनकर आई माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा मेरा कल किसी और के आंगन में। क्यों यह रीत रब ने बनाई होगी, कहते हैं आज नहीं तो कल बेटी पराई होगी। लड़कियाँ चिड़िया जैसे होते हैं पर इनके पर नहीं होते हैं, मायके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं पर घर नहीं होते हैं। उसके बूंद से होती है बेटियाँ, जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटियाँ। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। घर की चहल पहल है
है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी। धन्यवाद। मैं विद्यानगर हाई स्कूल से आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संचिता मंडल, हम चामरगांव हाई स्कूल से आए। नमस्कार, हमारा नाम चांदनी कुमारी, हम हाई स्कूल घटियाली हाई स्कूल से आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम बनीरा खातून, मैं यूएचएस हाई स्कूल से आई। उज्जवल कल करने को जेम ने दिया है एक आधार। अब नहीं रुकूंगी मैं, है मुझको खुद पर यकीन। एनटीपीसी फरक्का का जेम 2023, एम्पावरिंग गर्ल्स टुगेदर। हमने बालिकाओं का सर्वोपरि उन्नति के लिए कोशिश किया है। इस दौरान हम बालिकाओं को टेक्नोलॉजी का साथ साथ खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करा के उनका उन्नति के लिए कोशिश किया है। हमें आशा है कि इस प्रशिक्षण से बालिकाओं का जो एक्सपीरियंस हुआ ये उनकी आगे बढ़ने के लिए हम सब प्रेरित करते रहेंगे। अगर उसे तनुश्री जैसी दोस्त और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिला। है वो बहुत चुपचाप रहता है, इसलिए मैं उसको बोलूँगी यहाँ पे बहुत सीखने और जानने का मिलेगा। वो बहुत सीखे, जाने और आगे जाके अपना नाम रोशन करे। उनके जीवन के बदलाव और आत्मविश्वास को देखकर तोहफा को भी एक नई ऊर्जा मिली। अब उसे भी विश्वास हो गया कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है। पढ़ाई के अलावा उनको डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग देते हैं। हम आशा करते हैं ये बच्चे जाके आगे उज्जवल भविष्य में अपना नाम रोशन करें। कोशिशें हुई हैं कामयाब। इन्हीं कोशिशों के चलते भारत के पूर्वी भाग गंगा किनारे स्थापित एनटीपीसी फरक्का पावर प्लांट अपनी 2100 मेगावाट कैपेसिटी के साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और सिक्किम राज्यों को वर्षों से रोशन कर रहा है। और इसी पावर प्रोजेक्ट के करीब प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर झारखंड राज्य के साहिबगंज के हरे भरे गांव की रहने वाली तोहफा जुर्रा गुमसुम और चुप रहने वाली तोहफा जुर्रा अपने स्कूल में भी सबसे अलग रहती थी और उसका कोई दोस्त ही नहीं था। कुछ ऐसा लगता था कि उसके कई सवाल हैं जिसका जवाब वो ढूंढ रही है। फिर उसे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार के समझाने पर वो इसके लिए तैयार हो गई। गंगा नदी के किनारे बसे गांव में रहती है। वो जेम कार्यशाला में जाने की तैयारी कर रही थी। दोस्ती वो है जो हमारी दुनिया को बेहतर बनाती है। दोस्ती को लेकर तोहफा का नजरिया एनटीपीसी फरक्का के जेम प्रोग्राम में जाकर बदला। तोहफा शांत तो तनुश्री उत्साहित और बाकी सभी बच्चियां एक दूसरे से काफी अलग, फिर भी सब साथ साथ। इन सब की आंखों में एक चमक थी। जल्दी ही ये बच्चियां शर्त लगी थी दुनिया की हर खुशी को एक शब्द में बयान करने की। सबने किताब ढूंढते रह गए, मैंने बेटी लिख दिया। इसी सोच के साथ बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी की बालिक बच्चियों की सशक्त बनाने की एक अनूठी पहल है। इसमें पारिक सर, नबीना और हमारा अदर कॉलीग्स एनटीपीसी के और मीडिया के जो हमारा साथी यहाँ आए हैं और इतना गर्मी में हमारा साथ दे रहे हैं, और मेरे प्यारे बच्चे, टीचर्स। गर्ल एम्पावरमेंट जो है 1998 में ये परिकल्पना आया था, जो भारत सरकार की बेटी बचाओ की नारा था। उसी के परिकल्पना को एक साकार रूप देने के लिए एनटीपीसी प्रबंधन विंध्याचल में पहले 1998 में चालू हुआ था। वहाँ पे विंध्याचल
सिंगरौली अभियान हमारे 3 प्रोजेक्ट है। उसके बाद उसी का सफल रूपायन के बाद फारक्का में 1999 में हुआ। उसके बाद 20-21 को बंद था, 22-23 और ये 4th संस्करण है, ये 4था संस्करण यहाँ पे है। जैसे इसका नाम ही इसका महत्व ही दर्शाता है कि हम बालिका लोगों को सशक्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो है एनटीपीसी का ये मानना है कि अगर एक बालिका सशक्त होगी, एक परिवार सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। उसीलिए एक फॉर्मेटिव एज हम लोग लिया 12 से 13 साल, जब बच्चियाँ 6ठी श्रेणी में आते हैं 5वीं पास करके, उसी टाइम पे उनका दिमाग में कुछ नया दिशा दर्शन के लिए, कुछ नया सोच डालने के लिए, उनको कुछ दिशा निर्देश दिशा देने के लिए हम इन लोगों को यहाँ जो है सिलेक्शन करके 24 स्कूल से 5-5 करके 120 बच्चियाँ हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ हमारा जो है मुर्शिदाबाद जिला से 12 और आपका मालदा से 6 और झारखंड से 6, ऐसा करके 30-60 और 12-5-60 120 बच्चियाँ को हम लोग सिलेक्शन करते हैं हर स्कूल से 5-5 बच्चियाँ। फिर इनका एक किस स्तर में है करके एक बेसलाइन सर्वे होता है। में हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। आज के मीडिया इंटरेक्शन विद जेम गर्ल्स में सेशन में आपका स्वागत करना चाहूँगी उदिता लेडीज़ क्लब प्रेसिडेंट श्रीमती निवा पांडा मैडम का, एजे मारालाई फरक्का श्री उमेश पारिक सर का, हमारे HOHR फरक्का श्री आलोक कुमार रणवीर सर का। I also welcome senior members of Udita Ladies Club, my colleagues from HR and RLI departments. I extend my welcome to all the 117 GEM participants and the teachers and coordinators. और साथ ही साथ आप सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन। सशक्तिकरण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे हम आप देख सकते हैं बालिका सशक्तिकरण, इंग्लिश में गर्ल एम्पावरमेंट मिशन भी कहते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड के विभिन्न इलाकों से 117 बच्चों ने भाग लिया है। आप इनके एक्सपीरियंस के बारे में जान सकें, उनके अनुभवों को और इस अभियान के मूल्यों को तक अपनी कलम की ताकत से जगह जगह पहुंचा सकें, इसलिए हमने एक इंटरेक्शन रखा हुआ है। जेम के बारे में और जानकारी देने के लिए मैं HOHR सर से गुजारिश करती हूँ कि वो आगे इस पर बात करें। कॉन्ट्रैक्टर लोग दिया है, आप जेम अध्ययन लेवल पे करिए, उसमें HR आगे कुछ नहीं है, CNM का एंगल है, CNM को बुला के करिए कि 10% दे सकता है क्या, और NTPC में कहीं दिया है क्या, तो उस एंगल में आप करिए। আগে ছিল ওটা বন্ধ হয়েছে, এখন পোর্টালে চলছে। কিছু আছে।